مارچ 1986 کو ذوالفقار علی بھٹو کی 33 سالہ بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست میں واپس آنے کا اعلان کر دیا اور 10 اپریل کو پاکستان پہنچنے کی تاریخ بھی دے دی۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو طاقت کے ایوانوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی، کیا اس کو واپس آنے دیا جائے یا وہیں پہ روک دیا جائے۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے جنرل ضیاء الحق کو قائل کر لیا کہ اگر ہم محترمہ بینظیر بھٹو کی واپسی کو روکتے ہیں تو دنیا میں ہمارا برا تاثر جائے گا اور عالمی طاقتیں سمجھے گی کہ پاکستان کی سیاست کو دبایا جاتا ہے اور انصاف مہیا نہیں کیا جاتا۔ جنرل ضیاء الحق مان گئے اور 10 اپریل 1986 کو محترمہ بینظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ پہ تشریف لے آئیں۔ لاہور ایئرپورٹ کے ارد گرد لاکھوں لوگوں کا مجمع جمع تھا۔ لوگ ایک دن رات پہلے ہی وہاں پہ چلے گئے تھے، کچھ لوگ بستروں سمیت وہاں پہ موجود تھے۔ جب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اتری تو ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ لاکھوں لوگوں کے مجمع میں وہ لاہور ایئرپورٹ سے لاہور مال روڈ پہ آئیں اور پھر مال روڈ سے ہوتے ہوئے داتا دربار لاہور پہنچی۔ وہاں سے ہوتے ہوئے جب وہ مینار پاکستان پہنچی تو اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی۔ عوام کے ہاتھوں میں پاکستان اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے تھے اور وہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کے، محترمہ بینظیر کے نعرے لگا رہے تھے۔ جس ذوالفقار علی بھٹو کو 7 سال پہلے جنرل ضیاء الحق پھانسی دے چکے تھے، آج وہ پورے قد کے ساتھ مینار پاکستان پہ کھڑا تھا اور آج وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے سامنے عوام کا سمندر کھڑا تھا۔ وہ اور بزرگوں، اگر آج میرے والد کے شہادت کے باوجود، میرے بھائی کے شہادت کے باوجود، میری ماں کے بیماری کے باوجود، میرے اتنے لمبے عرصے نظر بندی کے باوجود سیاست میں ہوں، اس میدان میں ہوں، میں ہوں، اس لیے مجھے محبت ہے میرے ملک کے ساتھ، میرے وطن کے ساتھ، میرے ساتھی کے ساتھ۔ میں جمہوریت چاہتی ہوں تو میں جمہوریت پاکستان کے وکاس کے لیے چاہتی ہوں، پاکستان کے غریب اور مظلوم عوام کے لیے چاہتی ہوں، کمزور طبقے کے لیے چاہتی ہوں، تاکہ ہر ایک زندگی گزار سکے، عزت نفس زندگی گزار سکے، اپنے ملک کے اندر مالک ہو، تاکہ اس ملک کے اندر کسانوں کو زمین ملے، تاکہ اس ملک کے اندر مزدوروں کے ساتھ انصاف ہو اور اس ملک کے اندر چھوٹے دکانداروں کے ساتھ انصاف ہو، ہر ایک شخص کے ساتھ انصاف ہو۔ پاکستان کا ہر ٹکڑا میرے لیے عزیز ہے، اس لیے ہر ٹکڑا میرے ملک کا حصہ ہے۔ اور جب عوام کو نجات ہوگی، جب جاگیرداری ختم ہوگی، جب ناانصافی ختم ہوگی، جب آوریت ختم ہوگی، جب تشدد ختم ہوگی، تو اس وقت سب رنگ آگے آئے گا۔ پاکستان اور اس کے ملک، عوام، آپ کا دور آئے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا سیاست چھوڑ دو، تمہارا والد بھی شہید ہوا اور تمہارا بھائی بھی شہید ہوا، گھر تباہ ہو گیا اور زندگی بھی جائے گی، ہو سکتا ہے تمہیں بھی قتل کرا دیا جائے، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو۔ کچھ اور نے کہا پاکستان میں سیاست عورت کے لیے میدان
बड़ी मजलूम है, लिहाजा बेहतर है कि आप घर में बैठ जाएं। मैंने जवाब दिया, हर खतरे से पार्टी कारकुन मेरी हिफाजत करेंगे। जब तक पाकिस्तान में गरीब है तो भुट्टो समंदर जिसमें मुखालिफिन को अपना डूबता हुआ मुस्तकबिल नजर आ रहा था। इतना शानदार इस्तकबाल सरकारी अंदाजों के कुल खिलाफ था। मोहतरमा बेनज़ीर भी अपनी पजीराई को इतना ज़्यादा नहीं समझती थी। जब उन्हें इतनी पजीराई मिली, जब उन्हें इतना शानदार इस्तकबाल मिला तो वो बहुत ही खुश हुई। लेकिन मुश्किलात की इब्तिदा भी यहाँ से ही शुरू हो गई। एस्टैब्लिशमेंट ने उनके कदमों को रोकने का सोच लिया था और फैसला कर लिया था। उनके कदमों को रोकने के लिए पहला जो बड़ा कदम उन्होंने उठाया वो मोहतरमा बेनज़ीर की किरदार कशी थी। उनके स्कैंडल्स बनाए गए, उनकी बुरी बातों को आवाम के सामने लाने की कोशिशें की गई। जब वो लाहौर आई तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल सालेह के घर ठहरी। लोगों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने या मुखालिफिन ने उनके साथ भी उनका स्कैंडल बना दिया। जब ये सिलसिले इसी तरह शुरू हुए तो मोहतरमा बेनज़ीर की वालिदा नुसरत भुट्टो ने मोहतरमा बेनज़ीर की शादी का फैसला कर लिया। उस वक़्त बहुत से लोग भुट्टो खानदान के दामाद बनने के ख्वाब देख रहे थे। फैसल सालेह का भी कहा गया, लेकिन ये बेल मोंढे न चढ़ी। सैयदा आबिदा लिखती हैं कि फैसल सालेह कम पढ़े लिखे और बोर किस्म के आदमी थे, इसीलिए ये सिलसिला वहीं पे रुक गया। इसी दौरान नवाब शाह से एक घराने का रिश्ता आया। आसिफ अली जरदारी की वालिदा टिम्मी बुहारी रिश्ता लेकर नुसरत भुट्टो के पास आई और रिश्ते की बातचीत की। आसिफ अली जरदारी का कोई भी सियासी पर से मंजर तो नहीं था, जहां तक कि वो नवाब शाह के जिला कौंसिल के इलेक्शन भी हार चुके थे। लेकिन उनका उन दिनों में चलने वाला प्रॉपर्टी का बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। वही आसिफ अली जरदारी जिसको बाद में लोग गैंगस्टर और 10% और मुख्तलिफ नामों से जरदारी छापे भारी के नाम से जानते हैं। नुसरत भुट्टो को ये रिश्ता पसंद आया और 18 दिसंबर 1987 में लियारी के ग्राउंड किकरी में दोनों की शादी हो गई। चली चली ससुराल को बात चली चली। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दोस्तें आपके सामने एक नगमा पेश करेंगी। होने वाले जीजाजी, आसिफ जी होने वाले जीजाजी, आसिफ जी होने वाले जीजाजी, आसिफ जी होने वाले जीजाजी। शादी के तेरे हैं साथ और हमारी शर्तें साथ, तुमको हो मंजूर अगर कभी मिलेगा बड़ी जहां। आसिफ जी होने वाले जीजाजी, आसिफ जी होने वाले जीजाजी। ये शर्त है हमारी, ये बेल हमारी कायम रहेगी। सारी
अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मशकूर हूँ कि आप दूर दराज इलाके से यहाँ पहुँचे हैं और हमारे ख़ानदान के खुशी में शरीक हुए हैं। ये खुशी जो आप यहाँ शरीक हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। एजाज़ की बात है इसलिए जो जद्दोजहद मैंने की हूँ, मैं गरीब आवाम के खातिर, मजलूम आवाम के खातिर की हूँ। जो कुछ कुर्बानियाँ हमने दिए हैं इस धरती के खातिर दिए हैं। शादी से भी उनकी मुश्किलात में कमी नहीं आई, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट और मुखालिफिन उनकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखे हुए थे। यही वजह थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने अमीर से होने की खबर भी मीडिया से छुपा ली। लेकिन ऐसी खबर तो जनरल ज़ियाउल हक और ईवानों में बैठे लोगों को चाहिए थी, क्योंकि जुनेजो हुकूमत को बरतरफ करने के बाद अभी तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ था। जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने ऐलान किया था 90 दिन में इलेक्शन कराने का, उस हिसाब से 30 अगस्त 1988 तक इलेक्शन होने थे। वो ये भान चुके थे कि मोहतरमा बेनज़ीर मां बनने वाली हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भी इस शरारत को जांच चुकी थी, समझ चुकी थी। इसीलिए वो भी ढीले ढाले कपड़े पहनती थी ताकि देखने वाले ये अंदाज़ा ना लगा सके। उन्होंने अपने जरिए मुख्तलिफ जरियों के एक खबर मशहूर कर दी कि वो नवंबर में मां बनने वाली हैं। अब जो इलेक्शन करवाने का ऐलान जनरल ज़ियाउल हक 30 अगस्त का कर चुके थे, उनको अपने मंसूबे के तहत ये सब तब्दील करना पड़ा और उन्होंने इलेक्शन नवंबर में करवाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर ज़िंदगी के आलम में हों और इलेक्शन की मुहिम को न चला सकें। ज़िंदगी की तारीख की अजीबोगरीब सियासी मुहिम जारी थी कि जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा हवा में फट गया और वो इस फानी दुनिया से कूच कर गए। पाकिस्तान पे 11 साल 42 दिन बिला शिरकते गैर हुकूमत करने वाले जनरल ज़ियाउल हक की जगह 3 लोगों ने पुर की, जिनमें सबसे पहले गुलाम इसहाक खान थे, दूसरे नंबर पर जनरल असलम मिर्जा बेग थे, तीसरे नंबर पर ISI चीफ जनरल हमीद गुल थे। सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान भी इस खबर से बाखबर थे कि बेनज़ीर नवंबर को मां बनने वाली हैं, लिहाजा उन्होंने भी तारीख को तब्दील न किया और वही तारीख बरकरार रखी। लेकिन ये इतला गलत थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंतखाबात से 2 माह कबल 21 सितंबर 1988 को मां बन गई और बिलावल भुट्टो जरदारी पैदा हो गए और उनको इंतखाबी मुहिम चलाने का खुलकर मौका मिल गया। इलेक्शन की अजीबोगरीब सनसनीखेज कहानी अभी जारी है। पाकिस्तान की ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। बकाया इलेक्शन की मुकम्मल तफसीलात आपको अगली किस्त में दिखाई जाएंगी। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो।